حضرت عثمان بن عفان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ذو النورین ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری حیا اور شرافت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ جس طرح انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی ہر موقع پر مدد کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سن 23 ہجری 644 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باہمی مشورے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35 ہجری تک بخوبی انجام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصہ پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے۔ ان افسوسناک واقعات کا انجام آپ کی شہادت پر ہوا۔ 35 ہجری 18 ذی الحج بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں آپ کو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آرام فرما ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مبارک واقعات کا آغاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے سے ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے لیے وہ دن بہت اہم تھا۔ اس دن مکہ کے سب سے معزز قبیلہ قریش کا اجلاس تھا۔ مکہ مکرمہ میں دارالندوہ ایک ایسی جگہ تھی جسے پارلیمنٹ جیسی حیثیت حاصل تھی۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا، تمام سردار اس مقام پر جمع ہو کر آپس میں صلاح مشورہ کرتے تھے۔ اس دن بھی سرداران قریش مکہ اور حجاز کے مختلف اطراف سے فردن فردن ٹولیوں کی شکل میں دارالندوہ چلے آ رہے تھے۔ ایک طرف سے ابو جہل اپنے قریبی لوگوں کے گھیرے میں بڑے تن تراک سے خانہ کعبہ کے قریب سے گزر کر آیا۔ ادھر سے ابو سفیان بن حرب، ادھر سے عاص بن وائل، سامنے سے امیہ بن خلف دارالندوہ کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی راستے پر گزر ہوا، لیکن آپ کا رخ دارالندوہ کی جانب نہیں بلکہ اس کے مخالف سمت میں تھا۔ جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ لیکن ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبول اسلام کو راز رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا کہ نو مسلم ابھی اپنا اسلام کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اس وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی باتیں سیکھنے دار ارقم جا رہے تھے۔ یہ وہ خفیہ مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسلموں کو دین کی تربیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالندوہ کی مخالف سمت میں چلتے ہوئے دیکھ کر ابو جہل نے آواز دی، ابوبکر، قوم کی مجلس ہونے والی ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں ذرا مصروف ہوں اور آپ حضرات ہیں نا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ سامنے سے انہیں حضرت عثمان بن عفان آتے نظر آئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست اور کاروباری ساتھی تھے، لیکن آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں فرمایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ ہو گیا کہ آپ بھی کفار مکہ کے اجلاس میں شریک ہونے دارالندوہ ہی جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمے انداز میں آپ کو آواز دی، عثمان کہاں جا رہی ہیں؟ دارالندوہ کے اجلاس میں جواب ملا، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں کہ آپ کو اجلاس میں شریک نہیں ہونا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے خاموش کھڑے رہے، جیسے کچھ سوچ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عثمان بن عفان نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ فکرمند دکھائی دیتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے، ایسی کوئی بات ہے بھی اور نہیں بھی، بات صرف اتنی ہے کہ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی اچھی چیز ہو اور میں اس میں آپ کو شامل نہ کروں۔
इस वक्त आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, इसलिए जो भी मशवरा दूंगा आपके फायदे के लिए ही दूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, बेशक आप मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। अच्छा बताइए वो क्या चीज है जो आप मुझे भी देना चाहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ सोच कर जवाब दिया, यहाँ नहीं। आप आज दारुल निदवा जाने के बजाय मेरे साथ चलें। मैं आपको वो चीज यहाँ नहीं दे सकता। कुछ सोचकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अपने सर को हाँ में हिलाया और दोनों प्यारे दोस्त दारुल निदवा के बजाय दारे अरकम की तरफ रवाना हो गए। दारुल निदवा से महफूज फासले पर पहुंचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुक कर उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर निगाहें जमाते हुए उनसे पूछा, क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया कि नहीं, आप हम सब लोगों में सच्चे और मेहरबान हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मुझसे भी बड़े सच्चे इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान बोले, इसमें कोई शक नहीं, बाखुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन यानी सच्चे और अमानतदार हैं। बात क्या है, सब ठीक तो है, और कुछ बताते क्यों नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दोनों कांधों पर अपने हाथ रखते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक आप वादा नहीं करेंगे कि जो कुछ मैं बताऊंगा वो आप एक राज के तौर पर अपने पास ही रखेंगे, कबूल करने या ना करने का आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन वादा कीजिए किसी के सामने इजहार नहीं करेंगे। ये सुनकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब दिया, आपने मुझे फिक्रमंद कर दिया है। मैं रास्तों राज़ी रहने देने का वादा करता हूँ, क्योंकि लगता है आप किसी अजीम शान मसले के मुतालिक बात करने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, ऐसा ही है, बहुत बड़ी बात है। अरबों ने इस जैसा पैगाम में से कभी देखा ना सुना। इसमें इनकी भलाई है, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई। आखिरत का लफ्ज सुनकर उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जैसे हैरत ने आ लिया। आखिरत ये क्या है? आपने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साफ लबो लहजे में इस्लाम का पैगाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान तक पहुंचा दिया और खामोश हो गए। सच्चे दोस्त की तरफ से दी गई वो दावत इस कदर सच्ची और आला थी कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान उसी वक्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और दायरे अरकम जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। दायरे इस्लाम में दाखिल होते ही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़्फ़ कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगंबर हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर पुकार पर लब्बैक कहा और अपना माल और जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर करते रहे, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान भी पेश कर दी और शहादत के मनसब पर फाइज हुए। एक दफा का जिक्र है, एक हाजतमंद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी इसने दस्तक ना दी थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज उसके कानों में पड़ी। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अहलिया से फरमा रहे थे, चिराग की बत्ती बहुत मोटी है, यही तेल जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की असल वजह है, इसकी मोटाई कुछ कम करनी चाहिए। अब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज कुछ बुलंद थी, इसलिए बाहर खड़े हाजतमंद ने भी सुन ली। हाजतमंद ने जो ये सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी होने की क्या तवक्को करे जो तेल के मामूल से ज्यादा खर्च कर अपनी बीवी को इसकी तलकीन कर रहा है। फिर भी इसके दिल में ख्याल आया कि बात कर लेने में क्या हर्ज है, क्या मालूम कुछ न कुछ मदद हो ही जाए। ये सोचकर उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दे डाली। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। हाजतमंद ने अपनी जरूरत बयान की और आखिर में कदरे जोर देते हुए कहा, मेरी जरूरत कुछ ज्यादा ही है, अगर मुमकिन है तो पूरी कर दीजिए। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा और बस्ती से बाहर खुले मैदान में ले गए, जहां सामान्य तिजारत लाने वाले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले ने पड़ाव डाल रखा था। हर तरह का सामान और इजलास बड़ी तादाद में वहां मौजूद था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाजतमंद से फरमाया, मेरा ये तमाम माल तिजारत अब तुम्हारी नजर है, क्या इस सामान से तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी या कुछ और भी चाहिए? हाजतमंद हैरान और परेशान खड़ा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता रह गया। इसने कदरे शर्मिंदा अंदाज में अर्ज किया, हजरत ये सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये सब तुम्हारी जरूरत से कम नहीं। अब हजरत ने हैरत ज़दा अंदाज में सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पूछो।
क्या बात है! दरअसल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इसकी हैरत की खुशी का नाम लेके तो मुझसे सुनना चाहते थे। अब हज़रतमंद ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन एक बात बताएं, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को बचत की तलकीन फरमा रहे थे। हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ 1 दिरहम का तेल भी इस्तेमाल ना करता हो। वो बात एक तरफ, लेकिन यहाँ हज़ारों दिरहम का सामान मुझे बिला झिझक अनायत फरमा रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई चिराग में तेल का ज़्यादा इसराफ यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाली बात है और ज़्यादा इसराफ अल्लाह ताला को पसंद नहीं और मुझे अल्लाह ताला के हज़ूर अपने अमाल की फ़िक्र रहती है। यहाँ मुझे अपने अमाल की फ़िक्र आखिरत के हवाले से ज़्यादा है, इसलिए मैंने घर पर चिराग की लौ हल्की रखने की ताकीद की थी। दूसरी तरफ तुम्हारी हाजत के मुताबिक सामान मैंने तुम्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सदका दिया है। इस पर मुझे अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद है। इसलिए मैंने तुम्हें माल देते हुए अपना हाथ नहीं रोका। ये सुनकर वो हाजतमंद खुशी-खुशी वहाँ से रुखसत हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी इस तरह के इसार और कुर्बानी के वाक़यात से भरी हुई है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसार और सखावत का एक और वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेशे के एतबार से एक ताजिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी दौलत दी थी जो वो अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मदीना मुनव्वरा में बड़ा सख्त कहर पड़ा और तमाम अनाज खत्म हो गया। लोग भूख से बुरा बेहाल हो गए। जो लोग पहले ही गरीब थे उनके लिए और ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। इन हालात में बाज लालची लोगों ने अपना जखीरा किया हुआ अनाज कई गुना महंगा फरोख्त करना शुरू कर दिया और खूब मुनाफा कमाया। इन हालात में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे शहर से अनाज मंगवाया। बज़ाहिर ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक तिजारती काफ़िला था, इसलिए जब आपके अनाज से लदे हुए ऊँट मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो शहर के दुकानदार हज़रात हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दौड़े हुए आए और कारोबारी अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अनाज ज्यादा पैसे लेकर हमारे हाथों बेच दें, हम अपनी दुकानों पर लोगों को बेच देंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सबको अपने सामने अपने गोदाम में ले गए और अनाज का ज़खीरा अच्छी तरह दिखाया और पूछा, आप मुझे इसके बदले में कितना मुनाफा देंगे? सबने अपनी-अपनी पेशकश की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रख दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बातें सुन-सुन कर मुस्कुराते रहे। आपने उनसे सिर्फ इतना फरमाया कि आप लोगों को बताया हुआ मुनाफा मेरी उम्मीद से बहुत कम है। मुझे तो इससे भी ज्यादा मुनाफा चाहिए। तमाम के तमाम ताजिर इस पर बेहद हैरान हुए। इससे पहले उन्होंने कभी भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से ऐसी बात न सुनी थी। आप तो गरीबों का ख्याल रखने वाले इंसान थे। भला ये कैसे हो सकता था कि एक तरफ मदीना मुनव्वरा के लोग भूख से परेशान हों और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज्यादा मुनाफे के इंतजार में अपना अनाज रोक कर रख ले। आखिर ताजिरों ने आपको दुगने मुनाफा की पेशकश कर दी। आपने कुछ देर सोचकर दुकानदारों से कहा, आप मुझे दोगुना मुनाफा दे रहे हैं, मगर मुझे तो इससे भी ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। ताजिरों ने हैरान होकर पूछा, कितना? आपने फरमाया 70 गुना। ताजिरों ने ये बात सुनकर हैरत ज़दा अंदाज से एक दूसरे को देखा और आपस में मशवरा करके बोले, भला 70 गुना मुनाफा कौन देगा? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बात दोबारा से फरमाई कि मुझे 70 गुना मुनाफा मिल रहा है और मुझे तो इतना ही मुनाफा चाहिए। अगर आपको मंजूर नहीं तो बात यहीं पर खत्म समझिए। ये सुनकर ताजिर मायूस होकर लौट गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी संगीन सूरत हाल में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनाफा पर जिद की हो। किसी ने इस खालिस्तन कारोबारी गुफ्तगू की इत्तला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्त हज़रत उमर फारूक को भी दे दी। इन्हें भी इस बात पर बहुत हैरत हुई क्योंकि इससे पहले कभी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह की कोई बात न की थी। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बारे में आपसे दरियाफ्त फरमाया तो आपने तमाम बात खोलकर बयान कर दी। मुकामी दुकानदारों और ताजिरों के साथ बहस और मुबाहिसे का मकसद ये था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि जिस कदर मुनाफा अल्लाह के यहाँ हमें मिलता है उसकी किसी इंसान से कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही मतलब था कि अल्लाह ताला आखिरत में आपको 70 गुना सवाब देगा और फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में ऐलान फरमा दिया कि अनाज आ गया है, जो लोग खरीद नहीं सकते वो मुफ्त ले जाएं। यूं गरीब लोग आए और अनाज लेकर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआएं देते हुए चले गए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत अली मुर्तजा मुसलमानों के चौथे खलीफा मुंतखब हुए।
آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔